ठीक है, we started with FAR and then what's the best order to keep? सो पहले ये होता था कि सीपीए का रिजल्ट 15 to 20 डेज में आ जाता था. अब वो सिस्टम नहीं है. Now, what is the biggest change in the exam dates in 2024? Like I said, I don't want them to be a guinea pig in the experiment. Hello and welcome viewers to another episode of the Mythbuster podcast. We are thrilled to have you here with us today as the 2024 study material for the CP exam has hit the market. We understand the eagerness and excitement around selecting exam dates and creating a study plan. The process might seem a bit complicated due to recent changes made by AICPA, but worry not. In today's podcast, we are here to simplify it all for you with Mr. Rohan Chopra, a CPA and CMA himself and the co-founder of Edumont. So without further ado, let's go right into this. Hey, hi everybody. So hi, Thanks welcome for having Rohan. me. So with that, Rohan, you know that there is a study material now, it is out, 2024 study material is out, and the people who are now looking ahead, they also want to know, what is the biggest change in the exam dates in 2024? मैं बताता हूँ. सो पहले क्या होता था ना, 23 में कंटिन्यूस टेस्टिंग थी, तो फुल ईयर एक्सेप्ट फॉर पब्लिक हॉलीडेज जब चाहो तब पेपर शेड्यूल होते थे. अब थोड़ा सा चेंज आ गया, बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, थोड़ा सा चेंज आ गया. वो चेंज ये है कि नाउ द लास्ट 5 डेज ऑफ ईच क्वार्टर आर नो लॉन्गर अवेलेबल फॉर टेस्टिंग. तो अब क्या है, ये विंडो स्टाइल टेस्टिंग है. तो अब क्या है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, ऐसे 4 विंडोज हैं, और हर विंडो के जो लास्ट 5 डेज हैं, यानी हर क्वार्टर के जो लास्ट 5 डेज हैं, उसमें एग्जाम शेड्यूल नहीं होएगा. सो दैट्स द न्यू चेंज. And what about the testing windows applicable for the specialization? Because now we have core discipline, we have specialization. So is the same format applicable to those also? काइंड ऑफ मैं बताता हूँ, वैसे वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन अगेन, कि एग्जैक्टली वो सिस्टम नहीं है. स्पेशलाइजेशन की टेस्टिंग में एक्चुअली काफ़ी लिमिट हो गई है अब. तो स्पेशलाइजेशंस जो हैं, पहले तो ये बता दूँ सबको जो आपने बताया कि भाई 3 कोर सब्जेक्ट हैं और 1 स्पेशलाइजेशन है, विच इज़ एन इलेक्टिव सब्जेक्ट जो आप चूज कर सकते हो. 3 सब्जेक्ट्स की ऑप्शन है आपके पास, 3 चॉइसेस हैं, उनमें से एक इलेक्टिव सब्जेक्ट इलेक्ट कर सकते हो. तो टोटल 4 एग्जाम देने हैं आपको, 3 कोर 1 इलेक्टिव. जो इलेक्टिव है, जैसे आप डिसिप्लिन या स्पेशलाइजेशन भी कह सकते हो, वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट मंथ ऑफ ईच क्वार्टर में टेस्ट होएगी. सो वैसे अगर रियलिस्टिकली बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर जो है जनवरी टू मार्च, इसमें भी है स्पेशलाइजेशन का विंडो. 26 दिन के करीब यहाँ टेस्टिंग हो रही है. बट मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ किसी को, एंड आई डोंट रेकमेंड पीपल टेकिंग अप द स्पेशलाइजेशन सो अर्ली. बट मैं इस पर बाद में बात करूँगा. द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग हियर इज के द टेस्टिंग फॉर स्पेशलाइजेशन is available from the very first day of the year in a way, from January itself. But the right windows are actually going to be from quarter 2, quarter 3 and quarter 4 onwards. So quarter 2, 3 and 4 mein, whenever you are looking to schedule your exam, you'll find that the first month of each quarter is available for specialization testing. And I think this is great if they have special windows for specialization as they are specializing. So Ron, when we can expect the result after a quarter, when somebody पहले quarter में exam देने के बाद, when we can expect the अच्छा, result? so first quarter is the only exception. Other than that, second quarter, third quarter, fourth quarter onwards, जो रिजल्ट है आपका 45 to 60 डेज में आएगा. सो पहले ये होता था कि सीपीए का रिजल्ट 15 to 20 डेज में आ जाता था. अब वो सिस्टम नहीं है. नाउ दे गोइंग टू रिलीज रिजल्ट्स फॉर द होल क्वार्टर एट वन पर्टिकुलर डेट. So on an average, depending on when and where you give your exam, on an average, the time frame will be about 45 to 60 days from the date of you giving your exam to you receiving your result. Okay, so we have the dates. Now, let's say somebody now wants to start with the preparation. Which subject to take first? कहाँ से शुरुआत कहाँ से करें अपने preparation की? So the right subject for somebody who's starting their preparation is actually FAR. Especially for 24, given the fact कि हालांकि इससे पहले 23 में मेरा अलग प्लान होता था, 22 में अलग था. वो डिपेंड्स ऑन द पोजीशन एंड द सिचुएशन. अगर आस्किंग मी 24 में क्या बेस्ट प्लान है, क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी, तो आई वुड से स्टार्ट ऑफ विद FAR, क्योंकि FAR से सारे सब्जेक्ट्स की कहानी कुछ हद तक जुड़ती और बहती है. फॉर एग्जाम्पल, FAR इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ऑडिटिंग. FAR इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग.
तो अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग जिसको आती है, यानी कि जिसको अकाउंटिंग एज पर यूएस गैप करनी आ गई है, उसको यूएस गैप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करने में आसानी होगी, वो रिलेट कर पाएगा. So FAR and audit are naturally very well interlinked and related. Next up is REG. So that is also core subject, and REG is also related to FAR in the sense that there is a topic for deferred taxes. तो अगर आपको पता है कि FAR में जो differences हैं from tax basis, वो temporary differences के करके ही deferred taxes का topic पैदा होता है. तो जिसको accounting पता है और जो tax basis समझ जाता है, वो deferred taxes बहुत अच्छे से समझ जाता है. तो there's a lot of interlink between the two. Again, so as a result, I think the best place to start your journey, जिससे बाकी subjects थोड़े आसानी से समझ आने लगेंगे, is FAR. And if we talk about the order, like, ठीक है, we started with FAR, and then what's the best order to keep? मेरे ख्याल मैंने कुछ हद तक तो बोल ही दिया ऑर्डर क्या है. Just to streamline. Just to streamline, I'll tell you कि start off with FAR, then move on to audit, and then do your reg, and then do your specialization. देखो FAR और audit तो इकट्ठे देने ही है, राइट. उसके बाद बात ये आती है कि आपने रेग देना है या आपने स्पेशलाइजेशन पहले देनी है. मेरे अनुसार अगर आप रेग पहले दे देते हो तो एक तो कोर आपका निपट गया. स्पेशलाइजेशन चुनते हुए यू आर मोर वेल, you're मोर अवेयर ऑफ योर ओन इंटरेस्ट्स. यू नो कि अच्छा टैक्स पसंद है या नहीं पसंद है, अकाउंटिंग पसंद है या नहीं पसंद है. क्योंकि जो स्पेशलाइजेशंस हैं दे आर बेसिकली एक्सटेंशंस ऑफ द कोर सब्जेक्ट्स, राइट. जैसे BAR इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ FAR. ISC is a audit specialization. TCP, tax compliance and planning, is a reg specialization. तो आपको एज ए स्टूडेंट पता चल जाता है कि यार कौन सी मेरे को स्पेशलाइजेशन लेनी है. तो आई सजेस्ट गिविंग अ स्पेशलाइजेशन एज द फोर्थ एग्जाम later. That's the order that I. So why I asked you to streamline this, as we call it, a Mythbuster podcast series. Now, the situation is the competition segment in this industry. They are advising aspirants कि आप स्पेशलाइजेशन जो है वो आप कोर डिसिप्लिन के साथ ही ले लो. दैट द रीजन आई आस्क कि आप अगर स्ट्रीमलाइन क्लासेस इकट्ठे ले लो. हाँ, मतलब फार के साथ आप BR की स्पेशलाइजेशन उठा लो. हाँ, व्हाट्स द प्रॉब्लम, पढ़ लो. हाँ, साथ पढ़ लो, हम क्लास दे रहे हैं. सो द पॉइंट इज दिस अ सेंसिबल थिंग टू डू कि मैं फार के साथ ही स्पेशलाइजेशन उठा लूं, या जो भी मेरे को स्पेशलाइजेशन लेनी है पढ़ने में कोई खराबी नहीं है. मतलब जैसे अगर कोई फार पढ़ रहा है साथ साथ पढ़ लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें. But the thing is, you shouldn't give your exam straight up just now. I mean, I know there are a lot of institutes out there that are recommending to their students कि यार अब अभी जाओ पेपर दे आओ फार का, साथ में अपनी स्पेशलाइजेशन दे दो. वो मैं अपने स्टूडेंट्स को नहीं बोल रहा हूँ at Edumont, because I don't want my students to be guinea pigs in the experiment. क्या है ना, स्पेशलाइजेशन भाई पहली बार हो रही है, तो पहली बार टेस्ट होएगी, तो there's no history, no background. So whoever is going for the exam is actually taking a stab at it, is risking the exam के पास होगा नहीं होगा वो देखने की चीज़ें हैं. तो मेरा ये मानना है कि अगर आप थोड़ा सा रुक जाओ, अपनी स्पेशलाइजेशन की टेस्टिंग आप फोर्थ एग्जाम बनाकर बाद में करते हो, मान लो सेकंड या थर्ड क्वार्टर ऑफ 2024 में, तो तब तक इनफ ऑफ द टेस्टिंग वुड हैव टेकन प्लेस फॉर अस टू सी द पैटर्न्स ऑफ व्हाट ऑल इज टेस्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस. कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है. तो उससे थोड़ा स्टूडेंट का कर्व, लर्निंग कर्व भी कम हो जाता है, प्लस रिस्क फैक्टर भी कम हो जाता है. तो आई नो देयर आर इंस्टीट्यूट जो कह रही हैं जाओ पेपर अभी दे आओ, बिकॉज दे आर ऑल्सो क्यूरियस टू नो कि अभी हो क्या रहा है पेपर के अंदर. बट आई डोंट फील द नीड टू डू दैट विद माई स्टूडेंट्स. यार मैं अपने स्टूडेंट्स को, लाइक आई सेड, आई डोंट वांट देम टू बी अ गिनी पिग इन द एक्सपेरिमेंट. फॉर मी, इफ यू आर अ स्टूडेंट हु इज एनरोल्ड विद एड्यूमॉन्ट एंड यू ड्यू योर स्पेशलाइजेशन, गिव इट सम टाइम बिफोर यू स्टार्ट अपियरिंग फॉर दैट एग्जाम. थोड़ा हिस्ट्री इकट्ठा होने दो उसका, थोड़ा पता चलने दो क्या क्या टेस्ट होता है, then we'll prepare you accordingly. Okay. So with this, viewer, I believe you must have got a clarity that after finalizing an institute, आपको किस order में exam देने हैं, when to take core disciplines exam, when to take a specialization exam. I believe you must have got a clarity. Now moving ahead, what you can do is, if you find this session more interesting and you want to know more updates about 2024, every Saturday 4:30 we are conducting a webinar. You can find the registration link in the description below. Go and register yourself. We will invite you. We will send you the link to join the session on this Saturday 4:30 event. As always, like, share, comment, subscribe to our videos. We read all our comments and we'll definitely respond to all your comments. With that being said, अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है यार ये टॉपिक डिस्कस करना चाहिए, कोई कर नहीं रहा है, प्लीज आने दो, let it come to us. We'll be happy to do a podcast about it.
With that being said, thank you so much for watching. Have a great day. Bye.